Ladies and gentlemen, the slap that Kangana Ranaut received at the hands of a CISF personnel at Chandigarh airport yesterday has now become a massive political slugfest. The Kisan Union has come out in support of Kulvinder Kaur, the woman CISF official who assaulted Kangana. It has strongly warned against taking any action against her, else they say they will hit the streets. Listen in. तो उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द हुआ, लेकिन वो वर्दी पहन रही है, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। बता दे तो आंदोलन करने के लिए तो बहुत है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है। कोई चीज हुई तो जो जिसने उसने कहा है किसी को, आप वो धारा लगा के उनको एक नोटिस दे दो। Now, the farmers' stand for Kulvinder Kaur can perhaps be expected. After all, Kulvinder's mother was amongst those women who were protesting with the farmers when she was rather uncharitably referred to by the Bollywood actor as a woman who could be hired as a protester for 100 rupees. This is what spurred Kulvinder to slap Kangana Ranaut when she came face to face with her in the airport. Now, can anyone defend Kulvinder's actions? No, you cannot. She was in a uniform. She was on duty. She had no right to do what she did. But did Kangana Ranaut not cross the line first with her rather distasteful, disparaging and factually incorrect comments? That is a question to ask as well. There are many within Bollywood, though, who believe that while violence is never the answer, Kangana got what she deserved. People like Vishal Dadlani, who have promised to help out the CISF Jawan with a job if she loses hers, and she very well could. Others, such as Nana Patekar, are firmly of the opinion that what happened is wrong and unpardonable. नहीं, मुझे मालूम नहीं। गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। I, for a minute, do not condone what Kulvinder Kaur has done, especially because she was in uniform and was on duty. But is it now time also for motor mouths like Kangana Ranaut, who's now an MP, to understand the responsibility that comes with being a public leader and behave accordingly? Is there a lesson for everyone who just shoots off their mouth without checking facts? Ladies and gentlemen, that's the question that all of us need to ask ourselves this evening. Let me quickly go to our guests who are joining us this evening. Karan Verma continues to be with us. Sanjeev Kaushik is a political analyst with us. And Savit Malik is the national president of the Kisan Union joining us on the broadcast. Savit Malik, सवाल आपसे सीधा है। नमस्कार। सवाल आप सबसे सीधा है। सबसे पहले तो सवित जी आपसे, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? देखिए, कुलविंदर का गुस्सा जायज था, लेकिन वो यूनिफॉर्म में थी, वो ड्यूटी पे थी और उसे किसी को भी थप्पड़ मारने का तो कोई भी अधिकार नहीं था, कंगना रनौत और एनीवन एल्स। तो क्यों आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि अगर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो हम स्टर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। श्रेया जी, जब आदमी को दबाने का, कुचलने का, उनके सीने पे कील ठोकने का काम किया जाएगा तो भड़ास कहीं न कहीं निकलेगी। और इसकी शुरुआत खुद कंगना जी ने की है और उन्होंने किसानों के प्रति जो जहर उगला है उसी का नतीजा है। हम कहते हैं वो बहन है हमारी, उसको गुस्से में किया, उसको आक्रामक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने जो कंगना जिस लायक है वो उसके साथ हुआ है। उसका जो किसानों के प्रति व्यवहार है, रवैया है, जो जहर उगलने का तरीका है, आपने देखा है कि उसको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है हमारी बहन कुलविंदर को, और उसको आर्थिक मदद और वैसी भी मदद तमाम जगह से मिल रही है। क्यों आप एक प्रदेश को, एक जाति को, एक विशेष धर्म को क्यों कुचलना चाहते हैं? क्यों बदनाम करना चाहते हैं? आप किसी को कितना कुचल देंगे, कितना दबा देंगे, कितना बदनाम कर देंगे? आप अगर बड़े आदमी जो सरकार के सपोर्ट में है वो कुछ भी करे। आपने देखा कंगना जी के साथ में एक लड़की वहीं फोटो लेना चाह रही, उनको उनके साथ में जो टोपी वाला आदमी है वो थप्पड़ मारता है, उसका कोई मामला नहीं है। केजरीवाल को थप्पड़ मारते कोई नहीं, कन्हैया कुमार को मारते कोई नहीं, तमाम लोगों को जूते मारते कुछ नहीं, लेकिन यहाँ एक लड़की ने अपना विरोध जताने के लिए अगर ये किया है तो उस पर पूरा देश एक मतलब वो कर रहा है। अरे
वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि उसको जोश में नहीं आना चाहिए था। नहीं, लेकिन कंगना इसी लायक है, उसके साथ वर्दी जो में हुआ विरोध है नहीं उसको होता। आगे से सपोर्ट कर रहा है। नहीं, विरोध ना वर्दी में जी, नहीं श्रेया जी। होता। विरोध करना है तो वर्दी उतार दीजिए। समझ रहे हैं अरे सबित जी? वो- मैं ये कह रही हूँ जो वर्दी- कंगना रनौत ने बोला कुलविंदर की मां के लिए गलत था। किसी भी मां के लिए, किसी भी औरत के लिए, किसी के लिए भी झूठ मूठ की बातें इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए थी कंगना रनौत की। ये तो ऐसे प्रोटेस्टर हैं जो 100 रुपए में भाड़े पे आ सकते हैं, यही बात बोली थी ना, वो गलत थी। लेकिन अगर आपको विरोध करना है ना, वो विरोध वर्दी में नहीं हो सकता। क्या होगा अगर फौज, आधी फौज विरोध पे निकल जाए? सोचिए क्या होगा। एक डिसिप्लिन होता है हर फौज का। बट करण वर्मा, would you want to come in here? श्रेया जी, किसान उन्होंने एक फौज मिनट रुक को जाइए, खत्म करने एक का मिनट रुक काम जाइए कर दिया, सबित जी, एक अग्निवीर मिनट। बना दिए हैं। Come in, but you have to moderate him first. अगला डिस्कशन वो You have कोई to और, ask him to keep quiet now. वो दूसरा डिस्कशन है। अरे एक मिनट करण, डोंट गेट अग्रेसिव। हमारे शो में नो वन गेट्स अग्रेसिव, एज यू नो। करण वर्मा, essentially what is being said by the Kisan Union No, is no, I'm not getting aggressive. the lady, I'm not the getting lady I'm not getting had aggressive. He's getting the- aggressive. you know what she did was wrong because she was in uniform. Hear me out. She's saying what was wrong was the fact that she was in uniform, but her anger was legitimate, and Kangana deserved what she got. This is what the Kisan Union is saying. How do you react to that? I mean, can you reconcile with this statement, Shriya, that Kangana इसी लायक थी? What a disgusting statement. I mean, क्या एक औरत इस लायक हो सकती है? Can any woman, does any woman deserve to be beaten? And this man on your show has the audacity to say Kangana इसी लायक थी. It's a shameful statement that he must apologize for unconditionally. I mean, tomorrow, if taking offense to something becomes a precursor to violence and aggression in public life, it'll be a sad dog eats dog world. That is what we are going to be reduced to. How can anyone rationalize this? Kangana ने ये कहा था. Whatever Kangana said, we can debate that for another day. We can dissect that. We can criticize that. But how dare she come to this stage, and how dare this man say कि Kangana इसी लायक थी? I mean, you should actually reprimand him for saying such an awful statement on national television कि Kangana इस लायक थी. Who are you to decide Kangana किस लायक थी भाई? Are you the judge? Are you the jury? Who are you? Why this sense of entitlement? Who gave you this sense of entitlement? And who gave this entitlement to this Vishal Dadlani? Who's saying, oh, I will stand with her and I will give her a job. So you are going to stand with aggressors? I mean, come on. This is ridiculous. If we are reducing the public discourse to this, where a woman is manhandled, and that too by someone in uniform, even by a non-uniform person, it is wrong. But by a person in uniform who we hold to a higher standard, I think Kulvinder Kaur has brought disgrace to her uniform, to CISF as a decorated institution, and she must apologize rather than be patronized and encouraged by these people. That's what I feel. Sanjeev Kaushik? ठीक है, संजीव कौशिक, you have valid points there. जी बोलिए संजीव जी। देखिए श्रेया, आपकी सरकार में हो रहा है ये सब। जो घटना आप बोल घटी है वो सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सीआईएसएफ तो सेंट्रल फोर्स है। श्रेया, मुझे बोल लेने दीजिए, हम अपनी बात तो रख ले कम से कम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो घटना देखने को मिला वो बेहद शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। ये इस पे खेद हम जता रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि सरकार के प्रति लोगों में जो आक्रोश है, कितना दबाएगा लोग? वो छुप नहीं रहा है, वो पच नहीं रहा है, और वो आक्रोश तरह तरह से निकलने का प्रयास कर रहा है। वो अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि उसकी गलती ये थी कि वो वर्दी में थी और आक्रोश उसने व्यक्त किया। क्या वर्दी हटा देती, वर्दी उतार देती, उसके बाद में आक्रोश व्यक्त करती और कंगना के चेहरे पर थप्पड़ चलाती तो सही था क्या? सवाल यह है कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकारों ने क्या क्या नहीं सवाल पैदा किए उन पर, और किन किन शब्दों से नहीं उनको नवाजा। खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, वामपंथी, मतलब जो कहना था वो सब कुछ कहा। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो लोग रोजाना टीवी पर बैठ कर उनको कोसते थे, और उसमें कंगना भी एक थी। कंगना ने भी वहाँ पर बैठने वाली औरतों के बारे में अपशब्द कहे। अब जाहिर सी बात है कि 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि वो बहन यदि मेरे बगल में बैठी हो और मेरी माँ के बारे में कोई इस तरह की बात कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे हम? गुस्सा तो आएगा ही। आक्रोश को दबाना चाहिए, मेरा मानना है। इस तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां बंदूकों की गोलियों से लोगों को मरते हुए देखे हैं, और वो कौन
वो प्रशासनिक गोलियों से मरते हुए देखे हैं। हमने मणिपुर में देखा, हमने कश्मीर में देखा, उत्तर प्रदेश में पुलिस की जातियाँ देखी है, हमने दिल्ली में जातियाँ देखी है, कहाँ जातियाँ नहीं देखी है। लेकिन ये जाति और वो जाति दोनों में अंतर है, ये बात समझना होगा। और उसके बाद में कंगना ये स्टेटमेंट देती हैं कि खालिस्तानी या जिस तरह से उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैडम, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता तो हाथ नहीं चलाने की नौबत आती, उसका दूसरा स्वरूप होता है। पढ़े लिखे आप भी हैं, ये 2014 में हिंदुस्तान आज़ाद होने वाली इस बात नहीं है और स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। गंभीरतापूर्वक इस बात को समझिए और स्टेटमेंट देने का प्रयास कीजिए। इसमें भी राजनीति कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है? अरे उस लड़की ने तो सीधा कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा गया, मुझे आक्रोश था, मैं गुस्से में थी, मैंने हाथ चला दिया। लेकिन उसके बाद में आप कौन सी राजनीति कर रही हैं? पंजाब को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, खालिस्तानी यहाँ पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वही बात वो दोहरा रही है जो आज से 2 साल पहले किसानों के समय दोहराया जाता था और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरा रहे थे। अरे अब तो सबक ले ले कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब तो कम से कम किसानों के साथ इस तरह से पेश आए। इससे बड़ा सबक मिलना चाहिए क्या? इससे भी बड़ा सबक मिलेगा। यही भाषा, यही रफ्तार और यही दिशा रही तो आने वाले 5 सालों के बाद में अब हम ये भी नहीं कह सकते कि 5 साल इंतजार करने की जरूरत होगी। इससे भी बड़ा सबक देश की जनता देगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, so here's the thing. The viewers know both sides of the story. The viewers know what has happened, what Kulvinder did and why she did it. The viewers are ultimately the ones who will decide who they want to stand with. But for the moment, it is very clear that Kulvinder is in deep, deep trouble for that slap. We'll leave it there for the moment, ladies and gentlemen. Thank you very much. Karan Verma, thank you very much. Sanjeev Kaushik, thank you. And Savit Malik ji, thank you very much for joining us on the broadcast as well. With that, ladies and gentlemen, it's a wrap from me on the show. Thank you very much for watching. My colleague Shreya Upadhyay is joining you at the top of 9 with all the day's top stories. Do stay with us.